ایک بیٹے کے لہو لہان ہاتھ اور اندھے باپ کی آنکھوں کا وہ گہرا سناٹا۔ ظالم نے دھوکے سے یہ قبر کھدوائی تھی، مگر اس مٹی سے سونا نہیں، بلکہ اس گہرائی سے اب موت کی پکار نکلنے والی تھی۔ جب اندھیرے گڈھے میں وہ مٹی کا چراغ اچانک روشن ہوا تو اس کی نورانی چمک سے پورا بخارا کانپ اٹھا۔ کیا یوسف کا صبر اسے بادشاہت دلائے گا، یا یہ زمین منصور کو زندہ نگل لے گی؟ ریت کی گرم اور سوکھی ہوائیں جب پرانی جھونپڑی کی دراروں سے اندر آتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ریگستان ہماری ہڈیوں کی نمی کو بھی سوکھ لینا چاہتا ہے۔ بخارا کے اس ویرانے میں آج کا سورج بھی کسی بھاری بوجھ کی طرح آہستہ سے ڈھل رہا تھا۔ یوسف کے ہاتھ دھول اور مٹی سے سنے ہوئے تھے، اور بھوک نے اس کے سینے میں ایک آگ لگا دی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھٹی چادر میں لپٹا ہوا وہ آخری سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ یہ روٹی اتنی سخت اور بے ذائقہ تھی کہ اسے چبانا کسی پتھر کو توڑنے کے برابر لگ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے اس کا بوڑھا اور اندھا باپ بیٹھا تھا، جس کا پورا وجود محض ایک سایہ تھا۔ شیخ ابراہیم کی وہ دودھیا سفید آنکھیں، جن میں اب دنیا کی کوئی روشنی باقی نہیں تھی، اپنی خاموش گہرائی میں ہزاروں انکہے سوال اور بے حساب صبر کا سمندر سمیٹے ہوئے تھے۔ جھونپڑی کے باہر دھول کا طوفان اپنی پوری شدت کے ساتھ دیواروں سے سر پٹک رہا تھا، جیسے وہ اس غریب گھر کی آخری امید کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے جانے کی ضد پر اڑا ہو۔ یوسف نے بڑے ادب سے روٹی کا بڑا حصہ پانی میں بھگویا تاکہ وہ اس کے والد کے لیے نرم ہو جائے۔ لیجیے ابا جان، آج اللہ نے ہمارے لیے اسی حلال رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ ابراہیم نے اپنے کانپتے ہوئے جھریوں والے ہاتھ سے یوسف کا چہرہ چھوا اور گہری سانس لی۔ بیٹا، جس کے پاس ایمان کی دولت اور صبر کا سایہ ہو، وہ کبھی کنگالی میں نہیں مرتا۔ یوسف نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک تڑپ چھپی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حلال رزق کمانے کی خاطر اس نے آج پورا دن تپتی دھوپ میں پتھر توڑے تھے۔ ابا، کیا کبھی ہماری تقدیر بدلے گی؟ کیا کبھی اس سوکھی زمین پر برکت کی بارش ہوگی؟ ابراہیم مسکرائے، اور ان کی آنکھوں سے ایک نورانی سکون یوسف کے بے چین دل میں اتر گیا۔ وقت تو بس ایک مسافر ہے یوسف، اور انصاف کرنے والی ذات تو محض اوپر والے کی ہے۔ انسان اکثر اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر رب کی بڑی رحمتوں اور اس کے ارادوں کو بھول جاتا ہے۔ یوسف نے سوچا کہ یہ دنیا تو محض انسان کی چمکتی کھال اور مہنگا لباس ہی دیکھتی ہے، مگر میرا اللہ تو روح پر لگے ان گہرے زخموں کو دیکھتا ہے جو اس نے صبر کے لیے سہے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی یہ غریبی کوئی سزا نہیں، بلکہ اسے تراشنے کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ دھول کے اس طوفان کے بیچ اس چھوٹی سی اندھیری جھونپڑی میں ایک عجیب سی پاک روشنی محسوس ہوئی۔ یوسف کو علم نہیں تھا کہ یہ اندھیرا اس نور کی دستک ہے جو اس کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ایمانداری کا امتحان لینے کے لیے ایک ظالم دشمن دروازے پر کھڑا ہے، لیکن یوسف کا بھروسہ چٹان کی طرح مضبوط تھا کہ اس کا معبود اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یوسف کی جھونپڑی سے محض کچھ کوسوں کی دوری پر منصور کا ایک عالیشان اور بھویہ محل کھڑا تھا، جہاں وہ اپنی دولت اور تکبر کے نشے میں چور مہنگے ریشمی بستروں پر لیٹا ہوا تھا۔ منصور کا دل اس آگ کی طرح تھا جو کتنا بھی پانی پی لے مگر اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ اس کے لیے انسانیت کی کوئی قیمت نہیں تھی، صرف سونے کی کھنک ہی اس کا اصلی دین ایمان تھی۔ ایک رات منصور اپنی اندھیری اور ٹھنڈی کوٹری میں پرانے سڑتے ہوئے چمڑے کے کاغذ ٹٹول رہا۔ وہاں پرانی سیاہی اور مٹی کی گندھ ہوا میں کسی زہریلے سائے کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کانپتے ہاتھوں میں ایک ایسا مکتوب آیا جو صدیوں پرانا اور آدھا گلا ہوا تھا۔ اس دستاویز میں دنیا کے سب سے بڑے گناہگار اور امیر قارون کے خزانے کا صاف ذکر تھا۔ قارون وہی تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 60 طاقتور اونٹ بھی کم پڑ جاتے تھے۔ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ قارون کا 9واں خزانہ بخارا کی ایک خاص مٹی میں ہی دفن ہے۔ منصور کی آنکھوں میں لالچ کی ایک ایسی چمک اٹھی
जो किसी खूंखार शिकारी परिंदे की नजर जैसी थी। उसने नक्शे का मिलान किया और उसके हलक से एक डरावनी और शैतानी हंसी अचानक निकल पड़ी। वो जगह कहीं और नहीं बल्कि यूसुफ की उसी फटी पुरानी झोंपड़ी के ऐन नीचे मौजूद थी। मंसूर ने सोचा कि अल्लाह ने ये बरकत इस भिखारी यूसुफ के हिस्से में आखिर क्यों लिखती है। उसे मजलूम की बद्दुआ का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसकी रूह पर इस दुनिया का खलबा था। लालच एक ऐसा सांप है जो सबसे पहले अपने पालने वाले के दिल का सुकून डसकर राख कर देता है। मंसूर अब उस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को पूरी तरह तैयार था। उसने तय किया कि वो यूसुफ के ईमान को लालच की आग में झोंक कर उसका सब कुछ छीन लेगा। उसे नहीं पता था कि तकदीर के खेल में जालिम की रस्सी महज एक खास हद तक ही लंबी होती है। महज सोने की हसरत ने मंसूर के अंदर के इंसान को एक खूंखार और अंधे भेड़िए में बदल दिया था। उस रात महल की ऊंची दीवारों ने एक भयानक साजिश को अपने काले सायों में पनाह दे दी थी। अगले दिन दोपहर की तपती धूप जब बुखारा की प्यासी मिट्टी से आग उगल रही थी और हवाएं जिस्म को जला रही थीं, तभी दूर से किसी कीमती सवारी के आने की पच्चाप और भारी ऊँटों की घंटियों की मदहोश करने वाली आवाज सुनाई दी। मंसूर अपने रेशमी लबादे को रेगिस्तान की धूल से बचाते हुए यूसुफ की टूटी हुई झोंपड़ी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक मसनूई और बनावटी मुस्कुराहट थी जो किसी शातिर शिकारी के बिछाए हुए जहरीले जाल जैसी थी। यूसुफ ने उसे देखा और हैरत में पड़ गया कि शहर का सबसे बड़ा और मगरूर रईस उसके इस वीराने में कैसे आ पहुंचा। खुश रहो मेरे भाई यूसुफ, मंसूर ने बड़े मीठे और नर्म लहजे में कहा, जैसे उसके लबों से चाशनी और शहद टपक रहा हो। कल रात मैंने एक बहुत ही नूरानी और रूहानी ख्वाब देखा है जिसने मेरी नींद और मेरे दिल का सुकून पूरी तरह छीन लिया। उसने यूसुफ के करीब आकर अपनी आवाज को फुसफुसाहट में बदला और कहा कि उसे ख्वाब में एक मुकद्दस इशारा हुआ है। अल्लाह ने मुझे बताया है कि तुम्हारी इस झोंपड़ी के नीचे शिफा का एक प्राचीन और बेहद पाक चश्मा यानी कुआं दफन है। वो पानी ऐसा नूरानी है कि अगर उसे तुम्हारे अब्बा की आंखों पर लगाया जाए तो उनकी खोई हुई रोशनी फिर से लौट सकती है। शिफा और रोशनी का नाम सुनते ही यूसुफ के दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए थम सी गईं और रूह कांपने लगी। उसकी आंखों में एक ऐसी उम्मीद की किरण जागी जो बरसों के अंधेरे और जानलेवा मुफलिसी के बाद पहली बार वापस लौटी थी। क्या वाकई मंसूर साहब, क्या मेरे बेगुनाह अब्बा फिर से मुझे और इस हसीन कायनात को अपनी आंखों से देख पाएंगे? यूसुफ की आवाज में एक अजीब सी ललक और पाक जज्बात थे जो उसके सच्चे ईमान और वालिद की मोहब्बत से निकल रहे थे। मंसूर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, बस तुम्हें खुदाई का ये नेक काम शुरू करना होगा। झोंपड़ी के अंधेरे कोने में बैठे शेख इब्राहिम ने जब इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुना तो उनके दिल में एक अनजाना डर उठा। उनके पास आंखों का नूर नहीं था, मगर रूह की रोशनी ऐसी थी जो इंसानी नीयत की जहरीली और काली बू पहचान लेती थी। यूसुफ बेटा, हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में मीठी और चाशनी भरी जुबान के पीछे अक्सर बहुत कड़वा दिल छिपा होता है। यह दुनिया फरेब का एक बड़ा अड्डा है और यहाँ कोई रईस मुफ्त में किसी गरीब की आंखों की रोशनी लौटाने नहीं आता। मगर यूसुफ तो उस वक्त महज अपने वालिद की तकलीफ को दूर करने के जुनून में पूरी तरह से बेबस और अंधा हो चुका था। उसने अपने वालिद की हिदायत और ताकीद के बावजूद मंसूर की उस खौफनाक और लालची पेशकश को खुदाई के लिए कबूल कर लिया। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उनकी बरसों की दुआ सुन ली है और उनकी तकदीर का बुरा वक्त अब गुजरने वाला। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि जिस कुएं की वो खुदाई करने जा रहा है वो उसकी जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मंसूर की आंखों में लालच का वो काला और खौफनाक नाग नाच रहा था जो कारून के छिपे हुए खजाने को पाने के लिए बेताब था। साजिश की इस गहरी और काली बुनियाद ने उस पाक जमीन पर छल और फरेब का पहला जहरीला बीज पूरी तरह से बो दिया। हवा में धूल का एक भयानक पवंडर उठा, जैसे कायनात यूसुफ को आने वाली उस खौफनाक तबाही से आगाह करना चाहते हो। लेकिन यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया, अपनी कुदाल उठाई
और उस जमीन पर पहला वार किया जहां उसका सब्र तपने वाला था। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी कुदाल से उस सख्त और पथरीली जमीन पर पहला वार किया, जिसकी गूंज पूरे वीराने में फैल गई। जमीन की गहराई से उठने वाली वो सोंधी और गीली मिट्टी की महक यूसुफ के फेफड़ों में किसी पुरानी और मीठी याद की तरह बसने लगी थी। दिन गुजरते गए और हफ्तों की कमर तोड़ मशक्कत ने यूसुफ के जवान और मजबूत जिस्म को थकान और गर्द की चादर से पूरी तरह ओढ़ लिया था। उसकी हथेलियों पर अब कच्चा गोश्त दिखाई देने लगा था और खून के रिश्ते हुए जख्म हर बार कुदाल पकड़ने पर किसी तेजाब की तरह चलते थे। लेकिन उसके दिल में हलाल रिज़्क की सख्त तलब और अपने अंधे वालिद की आंखों के नूर की हसरत ने उसे पल भर भी रुकने नहीं दिया। जब दोपहर का बेरहम सूरज आसमान के सीने पर चढ़कर आग बरसाता तो यूसुफ के जिस्म से बहता पसीना उस प्यासी मिट्टी में समा जाता। खुदाई की आवाज का अब एक मखसूस और रूहानी लय बन चुका था। एक चोट जमीन पर और एक धीमी सी दुआ यूसुफ की कांपती हुई जुबान पर। गड्ढे के अंदर की दीवारें ठंडी और नमी भरी थी, जहां रोशनी धीरे धीरे धुंधली होकर एक रहस्यमयी और गहरे सन्नाटे में तब्दील हो रही थी। उधर दूर मंसूर अपने आलीशान महल की बालकनी पर बैठकर अपनी मखमली मसनद से यूसुफ की हर एक हरकत और गहराई का हिसाब रख रहा था। वो अपने हाथ में मौजूद एक लंबी डोरी से हर शाम उस गड्ढे की पैमाइश करता, जैसे वो यूसुफ की कब्र की लंबाई नाप रहा हो। उसकी पथरीली आंखों में कोई रहम नहीं था। वो तो सिर्फ उस कारून के सोने की हसरत में अंधा था जो यूसुफ की मेहनत के नीचे दबा था। रात की खामोशी में जब खुदाई का शोर थमता तो यूसुफ अपने वालिद के कदमों में बैठकर पुराने नबियों के अजीम सब्र की दास्तानें सुनते। शेख इब्राहिम उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो किस्सा सुनाते जिन्होंने बेइंतहा तकलीफों के बाद भी सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा किया था। बेटा यूसुफ, याद रखना कि जो इंसान आजमाइश की इस तपती भट्टी में मुस्कुरा कर खड़ा रहता है, उसी को अल्लाह की असली बरकत अता होती है। यूसुफ की आंखें पुरनम हो जाती और वो महसूस करता कि उसका ईमान इस गहरे अंधेरे गड्ढे के अंदर और भी ज्यादा चमकदार और रोशन हो रहा है। उसे पूरा यकीन था कि इस सख्त और जानलेवा मशक्कत के आखिर में सिर्फ पानी का चश्मा नहीं, बल्कि उसकी तकदीर का एक नया सवेरा छुपा है। हर वार के साथ वो या अल्लाह पुकारता, जैसे वो जमीन के पत्थरों को नहीं बल्कि अपनी ही सारी खौफ और इंसानी कमजोरियों को रेजा रेजा कर रहा हो। ये खुदाई अब महज एक साधारण कुआं खोदने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये रूह को अल्लाह के करीब ले जाने वाली एक पाकीज़ा और मुक़द्दस इबादत थी। गड्ढे की गहराई बढ़ने के साथ साथ ऊपर का आसमान छोटा होता जा रहा था, मगर यूसुफ का अपने खालिक पर भरोसा आसमां से भी ऊंचा होता गया। अंधेरे की परतों के नीचे वो इंसाफ की उस ठंडी लहर को तलाश रहा था जो उसके बूढ़े बाप के बेरंग और अंधे जीवन में दोबारा खुशियां भर सके। मंसूर को लग रहा था कि वो यूसुफ को गुलाम बना चुका है, मगर यूसुफ तो उस असली आज़ादी को पा रहा था जो सिर्फ सच्ची बंदगी में मुमकिन है। धूल, मिट्टी और खून के इस लंबे सफर में यूसुफ ने सीखा कि अल्लाह की रजा के लिए किया गया हर एक छोटा काम भी एक बहुत बड़ा चमत्कार बन सकता है। मिट्टी के अंदर दबे पत्थर यूसुफ के सब्र की गवाही दे रहे थे और हर गुजरते पल के साथ वो उस आखिरी पर्दे की तरफ बढ़ रहा था जो हक को उजागर करता है। रात की स्याही जब बुखारा के आसमान पर अपना गहरा कैफन फैला रही थी तो मंसूर अपने अंधेरे कमरे में बैठा एक तेज खंजर की धार को पत्थर पर रगड़ रहा था। लोहे के घिसने की वो ठंडी और चुभती हुई आवाज कमरे के सन्नाटे को किसी जहरीले सांप की तरह डस रही थी। उसके सामने एक मजबूत रस्सी का फंदा पड़ा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल उठी थी। मंसूर की आंखों में ईमान का कोई गुजर नहीं था। उसके लिए तो दुनिया का हर रिश्ता सिर्फ एक मतलब का सौदा था। यूसुफ, तू समझ रहा है कि तू जन्नत का रास्ता खोद रहा है, मगर तू अपनी ही कब्र की सीढ़ियां उतर रहा है। वो कारून का सोना जिसके लिए बादशाहों ने अपनी सल्तनतें कुर्बान कर दी, वो इस फटेहाल भिखारी के लिए नहीं बना है,
मंसूर ने अपने नफ्स को ये यकीन दिला दिया था कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर का हक है और कमजोर सिर्फ मिटने के लिए है। उसने खंजर को मजबूती से पकड़ा, जैसे वो इंसाफ और हलाल रिस्क की हर उम्मीद का गला घोटने की तैयारी कर रहा हो। उसका प्लान तैयार था। जैसे ही यूसुफ किसी भारी चीज के मिलने का इशारा करेगा, वो कुएं की कच्ची दीवारों को ढहा देगा। एक बनावटी हादसा और एक गहरी कब्र, और फिर सारा खजाना और सारी बरकत सिर्फ मंसूर की मुट्ठी में होगी। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती से पिघलती मोम की गंध किसी जलते हुए जमीर की आखिरी और खामोश गवाही दे रही थी। मंसूर ने खिड़की से बाहर देखा और हिकारत से मुस्कुराया। उसे लगा कि खुदा ने उसे ये मौका उसकी चालाकी के इनाम में दिया है। उसके ज़मीर की आवाज़ अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी, जैसे किसी पुरानी अंधेरी कब्र में कोई चिराग हमेशा के लिए बुझ गया हो। बाहर काली घटाएं घिरी हुई थीं और रहमत का आसमान मंसूर की इस खौफनाक साजिश को बहुत ही खामोशी से देख रहा था। मंसूर को लग रहा था कि वो अंधेरा उसे दुनिया से छुपा लेगा, मगर वो बेपेबर था कि अल्लाह की नज़र पत्थरों के पीछे भी देख लेती है। वो रस्सी का हर रेशा और खंजर की हर चमक यूसुफ की बेगुनाही और मंसूर की बेईमानी का एक मुंह बोलता सबूत बन चुकी थी। मंसूर का दिल उस आग की तरह दहक रहा था जो सिर्फ दूसरों की बर्बादी देखकर ही ठंडी हो सकती थी। उसे नहीं पता था कि सब्र करने वालों की ढाल लोहे के खंजर से भी ज्यादा मजबूत और रूहानी तौर पर ताकतवर होती है। वो शिकारी अपनी आखिरी और जानलेवा चाल चलने के लिए तैयार खड़ा था, मगर तकदीर का असली फैसला कुछ और ही होने वाला था। रात की वो खामोशी अब एक ऐसी चीख में बदलने वाली थी जो जालिम के तकब्बुर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी। गड्ढे की उस भयावह गहराई में सन्नाटा इतना भारी था कि यूसुफ को अपने ही दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वहां की हवा में गीली मिट्टी और पुरानी नमी की एक ऐसी गंध रची बसी थी जो घुटन और बेबसी का गहरा एहसास दिला रही थी। यूसुफ ने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखा, जहां विशाल नीला आसमान अब महज एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु बनकर रह गया था। उसके फटे हुए कपड़ों में रेगिस्तान की धूल जम चुकी थी और जख्मी हाथों की जलन अब सर्द रात की नमी में किसी तेजाब की तरह टीस रही थी। या मेरे मालिक, क्या मेरा ये सब्र यहां इस बेरहम अंधेरे में दम तोड़ देगा? क्या मेरी नीयत में कोई अनजाना खोट रह गया था? उसे ना तो पानी का कोई कतरा मिला और ना ही उस खजाने का निशान जिसके लालच ने उसे इस काल कोठरी में कैद कर दिया था। एक पल के लिए यूसुफ को लगा जैसे पूरी कायनात ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वो अपनी ही खोदी हुई तकदीर की कब्र में बंद हो चुका है। तभी ऊपर से एक बहुत ही कमजोर मगर रूहानी सुकून से भरी आवाज गूंजी, जैसे कोई नूरानी रोशनी उस काले अंधेरे को चीर रही हो। बेटा यूसुफ, हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो रब तुम्हें इस गहराई में लेकर आया है वही तुम्हारी हर एक सांस का निगहबान भी है। याद रखना, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तभी अल्लाह की बरकत का असली और मुकम्मल मोजज़ा शुरू होता है। शेख इब्राहिम ने ऊपर से उन नबियों के सब्र की आयतें पढ़नी शुरू की जिन्होंने तन्हाई के अंधेरों में भी ईमान का दामन नहीं छोड़ा था। पिता की वो पुरस्सर आवाज यूसुफ के मरते हुए हौसले में एक नई जान फूंक गई और उसके दिल से या रब की एक बुलंद सदा निकली। उसने अपनी कुदाल को फिर से थाम लिया, जैसे वो पत्थरों को नहीं बल्कि अपनी ही रूह पर जमी हुई मायूसी की परतों को तोड़ रहा हो। अगर मेरे रब की यही मर्जी है तो मुझे ये तन्हाई और ये मशक्कत मंजूर है, क्योंकि उसका इंसाफ कभी गलत नहीं हो सकता। यूसुफ की आंखों से गिरे आंसू उस सूखी मिट्टी में शुक्र बनकर जज्ब हो गए और उसके अंदर का डर अब एक अजीम सुकून में बदल चुका था। वो समझ गया कि यह गड्ढा उसे दफनाने के लिए नहीं बल्कि उसकी रूह को दुनियावी लालच से पाक करने के लिए बनाया गया है। रूह की इस तारीख रात ने यूसुफ को उस असली हलाल रिस्क का मतलब समझा दिया जो सिर्फ खुदा की रजा में राजी रहने से मिलता है। मिट्टी के ढेर और पत्थरों के बीच यूसुफ अब अकेला नहीं था। उसे महसूस हो रहा था जैसे
फरिश्ते उसके इस इम्तिहान के गवाह बन रहे हैं। रात की उस अंतिम और सबसे अंधेरी गहराई में जब यूसुफ की कुदाल मिट्टी की एक बेहद सख्त परत से टकराई तो धातु की एक तीखी खनक गूंज उठी। दबे हुए खजाने की उम्मीद में यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा और वहां की ठंडी हवा में अचानक एक पुरानी और मध्यम सी मिट्टी की खुशबू फैलने लगी। उसने मलबे को अपने जख्मी और लहूलुहान हाथों से हटाना शुरू किया, जैसे कोई अपनी ही सोई हुई तकदीर की परतों को बेनकाब कर रहा हो। मगर वहां सोने की अशरफियां या कारून के हीरे नहीं थे, बल्कि धूल में लिपटी हुई मिट्टी की एक बेहद पुरानी और सादा सी लौंप यानी चिराग पड़ी थी। उस चिराग की बनावट बहुत अजीब थी। उसकी सतह पर ऐसे सादे नक्श और रूहानी निशान बने थे जो किसी गुजरे हुए पाक जमाने की गवाही दे रहे थे। मलबे से निकलने के बाद भी उस चिराग से एक ऐसी सोंधी महक आ रही थी जैसे वो किसी मुकद्दस और नूरानी बागान की मिट्टी से तैयार की गई हो। यूसुफ ने बड़े सब्र और एहतियात के साथ उस चिराग को अपने हाथों में उठाया। उसका वजन किसी मामूली पत्थर से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। ऊपर महल की बालकनी से मंसूर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की वो शैतानी चमक उठी जिसने उसके बचे खुचे ईमान को भी जला दिया था। कहाँ है वो सोना यूसुफ? क्या तूने उसे पा लिया? मंसूर चिल्लाया और अपनी बेकाबू हसरत के मारे रस्सी पकड़कर खुद उस गहरे गड्ढे में उतरने लगा। जैसे ही मंसूर के पैर उस गहराई की मिट्टी से टकराए, अचानक उस बंद जगह में हवा का मिजाज पूरी तरह बदल गया और एक तेज बर्फीली लहर दौड़ गई। वहां एक ऐसी मुकद्दस और रूहानी मौजूदगी का एहसास होने लगा कि मंसूर के हाथ पांव सुन्न हो गए और वो अपनी ही जगह पर पत्थर की तरह जम गया। मंसूर की आंखों में खौफ था। उसे महसूस हुआ कि वो किसी खजाने के पास नहीं, बल्कि इंसाफ की उस महान अदालत के सामने खड़ा है जहां कोई पर्दा नहीं होता। यूसुफ का चेहरा उस अंधेरे में भी एक नूरानी चमक से रोशन था, जबकि मंसूर की काली नीयत उस साधारण से दिखने वाले चिराग के सामने बेनकाब हो रही थी। रेगिस्तान का वो बवंडर अचानक शांत हो गया और कुएं के अंदर एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे सारी कायनात इस बरकत के खुलने का इंतजार कर रही हो। यह महज एक मिट्टी का दिया नहीं था, बल्कि ये उस हकीकत का पहला सबूत था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत और दौलत कभी खरीद नहीं सकती थी। मंसूर किसी भूखे भेड़िए की तरह उस गड्ढे की गहराई में कूदा और यूसुफ के हाथों से उस मिट्टी के चिराग को बड़ी बेरहमी से छीन ली। मंसूर की सांसों में लालच की पुरानी सड़ांध थी और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे लगा कि यही वो कारून के खजाने की सुनहरी चाबी है। उसने अपनी जेब से चकमक पत्थर निकाला और पागलों की तरह आग की चिंगारियां पैदा करने की कोशिश की ताकि वो चिराग को रोशन कर सके। मगर वो मिट्टी का दिया किसी ठंडी और बेजान चट्टान की तरह खामोश रहा, जैसे वो मंसूर के काले और गंदे दिल की हकीकत को पहचान गया। मंसूर गुस्से से पागल हो उठा। उसका चेहरा नफरत और हसरत की आग में तमतमाने लगा और उसने चिल्लाकर यूसुफ पर धोखे का भयानक इल्जाम लगाया। तूने मुझे धोखा दिया है यूसुफ। ये कोई मुकद्दस खजाना नहीं, बल्कि एक बेकार, मामूली और मिट्टी का टूटा हुआ पुराना पत्थर का खिलौना है। उसने अपनी पूरी नफरत बटोरी और वो चिराग यूसुफ के सीने की तरफ इतनी जोर से फेंका कि वो पत्थर उसके मासूम दिल को पल भर में चल नहीं करते। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्मिल्लाह का विर्द करते हुए उस गिरते हुए चिराग को अपने जख्मी हाथों के बीच बड़ी पाकीज़गी से थाम लिया। उसी पल एक ऐसा धमाका हुआ जो कानों को फाड़ने वाला नहीं, बल्कि सोई हुई रूहों को झंझोड़ने वाला एक असीम और महान रूहानी विस्फोट था। उस मिट्टी के दिए से अचानक सूरज की तरह तेज और सफेद नूर का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने उस गहरी काल कोठरी को जन्नत की तरह चमका दिया। ये रोशनी दुनियावी आग की तरह तपिश नहीं देती थी, बल्कि इसमें ठंडी हवाओं की ताजगी और जन्नत के चमेली के फूलों जैसी एक मदहोश खुशबू बसी थी। जैसे ही वो मुकद्दस नूर यूसुफ के जिस्म से टकराया, उसकी हथेलियों के रिश्ते हुए जख्म पल भर में ऐसे भर गए जैसे वहां कभी कोई चोट ही ना थी। यूसुफ की रूह में एक ऐसा शुक्र पैदा हुआ
जिसने उसके वजूद को जमीन से उठाकर रूहानी बुलंदियों की एक नई और अनदेखी सैर पर भेज दिया। वहां का तापमान अब बर्फ की तरह ठंडा मगर रूह को सुकून देने वाला बन चुका था, जैसे कुदरत ने यूसुफ के लिए अपनी रहमत की गोद फैला दी हो। मगर वही नूर मंसूर की आंखों के लिए किसी दहकते हुए तेजाब की तरह बन गया, क्योंकि उसकी आंखों पर बरसों से लालच की काली पट्टी बंधी हुई थी। मंसूर अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर पागलों की तरह चीखने लगा। उसे उस रोशनी में कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय अपने उन पुराने काले गुनाहों के। ये सच्चाई का नूर था जो सिर्फ उसी के हाथ में जलता है जिसके पास ईमान की अनमोल दौलत और हलाल रिस्क की सबसे पाकीज़ा नीयत होती है। हवाओं में अल्लाह की एक धीमी और मीठी गूंज सुनाई दे रही थी जो हर उस दिल को सुकून दे रही थी जो इस दुनिया के फरेब से पाक हो चुका था। मंसूर को अब अपनी तिजोरियों के सोने से नफरत महसूस होने लगी, क्योंकि वो दौलत इस एक कतरे नूर के सामने कचरे के ढेर जैसी लग रही थी। चिराग को दुनियावी तेल या बत्ती की जरूरत नहीं थी, उसे तो महज उस नीयत की प्यास थी जिसे यूसुफ ने अपने बेमिसाल सब्र से संवारा था। यूसुफ उस नूरानी हकीकत के बीच किसी फरिश्ते की मानिंद खड़ा था, जबकि मंसूर उस हक की चमक के डर से जमीन में अपना सिर पटक कर रो रहा था। उस रात बुखारा की जमीन के नीचे इंसाफ का वो चिराग रोशन हुआ था जिसकी चमक अब इस फानी दुनिया के हर अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार थी। इस मौजज़े ने साबित कर दिया कि जब इंसान अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है तो पत्थर के टुकड़ों से भी रूहानी रोशनी फूट पड़ती है। चिराग के नूरानी धमाके के बाद जमीन के अंदर से एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जैसे कोई सोया हुआ पहाड़ जाग उठा हो। बुखारा की पुरानी मिट्टी किसी जख्मी अजदहे की तरह कांपने लगी और कुएं की दीवारें अचानक दरकने और टूटने लगे। मंसूर की आंखों के सामने धूल के गुबार में सोने की अशरफियों और हीरों का एक चमकता हुआ पहाड़ नजर आने लगा। ये कारून के उस शापित खजाने का साया था जिसने सदियों पहले दुनिया के सबसे बड़े लालची इंसान को निगल लिया था। मंसूर मदहोश होकर चिल्लाया, मेरा सोना, ये सब मेरा है, और वो पागलों की तरह उस तपती मिट्टी को गले लगाने लगा। उस वक्त वहां मुकाफात अमल यानी कुदरत के इंसाफ का वो खौफनाक मंजर शुरू हुआ जिसे देखकर रूह कांप जाए। मिट्टी अब मिट्टी नहीं रही थी, बल्कि किसी भूखे और बेरहम जानवर के जबड़े की तरह मंसूर के पैरों को जकड़ने लगी। मंसूर ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर उस जमीन में ऐसे धंसने लगे जैसे वो किसी दलदल में फंस गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी वो बेशुमार दौलत और तकब्बुर उसे एक पल की कीमती सांस भी उधार देने के काबिल नहीं थे। बचाओ मुझे यूसुफ, ये जमीन मुझे निगल रही है। मंसूर की चीख कुएं के उस काले सन्नाटे में दब कर रह गई। कुएं की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, जैसे वो उस नापाक वजूद को हमेशा के लिए दफन करना चाहती हूं। ये कारून के साए का वो इंतकाम था जो हर उस इंसान को मिलता है जो दूसरों का हलाल रिस्क छीनने की कोशिश करता है। मंसूर की आंखों में मौत का वो खौफ था जो दुनिया की सारी अशरफियां और सोने के पहाड़ मिलकर भी कम नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते बुखारा की उस प्यासी जमीन ने मंसूर को उसके लालच समेत अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया। यूसुफ खामोशी से ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उसका इंसाफ सबसे ऊंचा है। जिस जमीन को मंसूर अपनी मिल्कियत समझता था, आज वही जमीन उसे एक मामूली पत्थर की तरह निगलकर खामोश हो गई थी। मिट्टी की उन परतों के नीचे मंसूर का नाम और उसका तकब्बुर हमेशा के लिए एक इबरत यानी सबक का निशान बन चुका था। ये मंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि सब्र करने वालों का रब कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। सन्नाटा फिर से छा गया, मगर इस बार इसमें खौफ नहीं, बल्कि एक मुकद्दस और पाकीज़ा रूहानी सुकून की लहर थी। यूसुफ ने उस मिट्टी के दिए को अपने सीने से लगा लिया, जिसे अब कोई जालिम उससे कभी नहीं छीन सकता था। तकदीर का पहिया घूम चुका था और इंसाफ की वो गूंज अब पूरे बुखारा के आसमान पर छा जाने के लिए तैयार थी।
यूसुफ उस गहरी और काली गहराई से बाहर निकला, जैसे कोई सितारा रात के सीने को चीर कर बाहर आता है। उसके हाथ में वो मिट्टी का चिराग अब महज एक दिया नहीं था, बल्कि रूहानी नूर का एक अजीम समंदर था। हवा में चमेली और पुराने चंदन की एक ऐसी खुशबू फैल गई थी जिसने पूरे वीराने को महका दिया था। वो तेजी से अपनी टूटी हुई झोंपड़ी की तरफ बढ़ा, जहां उसका इंतजार उसका बूढ़ा और बेबस बाप कर रहा था। जैसे ही उसने झोंपड़ी की दहलीज पर कदम रखा, वो अंधेरा कमरा अचानक सूरज की किरणों से भर गया। शेख इब्राहिम अपनी जगह पर जम गए। उन्हें अपने जिस्म में एक ठंडी और मीठी सी सिहरन महसूस हुई। अब्बा जान, देखिए, अल्लाह ने हमारे सब्र का फल और आपकी दुआओं का जवाब भेज दिया है। यूसुफ ने बड़े अदब से वो नूरानी चिराग अपने पिता की उन बेनूर और सफेद आंखों के करीब किया। उसी पल एक मुझसा हुआ। इब्राहिम की आंखों पर जमा वो 20 साल पुराना धुंधला पर्दा पिघलने लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों के अंदर हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों और अंधेरा भाग रहा हो। अचानक वो सफेद पर्दा गायब हो गया और इब्राहिम की आंखों में काली पुतलियां फिर से चमक उठीं। यूसुफ, बेटा, क्या ये तुम हो? मेरी आंखों में ये कैसा अनोखा और पाकीज़ा नूर भर गया है। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बाप ने अपने जवान बेटे का चेहरा पहली बार अपनी आंखों से देखा। इब्राहिम फूट फूट कर रो पड़े और उनके आंसू यूसुफ के हाथों के जख्मों पर मरहम की तरह गिरने लगे। बेटा, तुम्हारी पेशानी पर तो ईमान की चमक है और तुम्हारी आंखों में हलाल रिज़्क का सुकून है। वो छोटी सी झोंपड़ी अब मिट्टी का घर नहीं लग रही थी, बल्कि किसी शाही महल से भी ज्यादा हसीन थी। वहां हर तरफ ऐसी बरकत महसूस हो रही थी जैसे फरिश्तों ने अपने परों का साया कर दिया हो। इब्राहिम ने देखा कि दीवार की हर दरार से नूर फूट रहा है और घर का खाली मटका भी पानी से लबालब है। ये उस इंसाफ का इनाम था जो महज अल्लाह की राह में सब्र करने वाले बंदों को अता किया जाता है। पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लग गए और उनकी सिसकियों में एक असीम जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। बाहर रेगिस्तान की गर्म धूल अब ठंडी हो चुकी थी और आसमान पर सुबह का सितारा चमकने लगा था। यूसुफ समझ गया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि वो पल है जब माँ बाप की आंखों में शिफा आती है। उस नूरानी रात ने साबित कर दिया कि जिसकी नीयत साफ हो, उसकी तकदीर को रब खुद संवारता है। सूरज की पहली किरण ने बुखारा के बाजार को जगाया, मगर आज की सुबह में एक अजीब सा रूहानी खिंचाव और नूरानी ठंडक थी। यूसुफ की झोंपड़ी से निकलता हुआ वो उजाला इतना तेज था कि उसने सुबह के सूरज की चमक को भी पल भर में फीका कर दिया था। बस्ती के लोग अपनी अधूरी नींद छोड़कर उस वीराने की तरफ दौड़ने लगे, जहां कल तक सिर्फ मुफलिसी का सन्नाटा छाया रहता था। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यूसुफ का चेहरा किसी शहजादे की तरह चमक रहा है और उसके पिता की आंखों में नूर है। यह मुजज़ा कैसे हुआ? लोगों ने हैरत से पूछा। और वो मगरूर मंसूर कहाँ है जो कल रात तुम्हारे साथ यहां मौजूद था? यूसुफ ने आहिस्ता से उस जगह की तरफ इशारा किया जहां कभी मंसूर का तकब्बुर खड़ा था, मगर अब वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। जमीन ने उस जालिम को उसके लालच समेत निगल लिया था, जैसे कारून की दौलत को हजारों साल पहले मिट्टी ने अपने अंदर निगला था। हम जिसे गरीब समझते थे, वो तो दरअसल रूह का सुल्तान निकला। एक बुजुर्ग ने यूसुफ के हाथ चूमते हुए बड़े भारी मन से कहा। यूसुफ की मुफलिसी तो महज एक पर्दा थी जिसने उसके अंदर के असली ईमान और रूहानी वकार को दुनिया की नजरों से छुपा रखा था। याद रखो, हलाल रिज़्क की एक सूखी रोटी हराम के सोने के पहाड़ों से हजारों गुना ज्यादा कीमती और बरकत वाली होती है। लोगों ने महसूस किया कि जिस मिट्टी में मंसूर धंसा था, वहां से अब सरन की बदबू आ रही थी, जबकि यूसुफ के आंगन में फूलों की महक थी। उस दिन बुखारा की आवाम ने दौलत की इबादत छोड़ दी और उन चेहरों की इज्जत करना सीखी जिनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन थे। इंसान की असली तकदीर उसके बैंक के खातों में नहीं, बल्कि उसके उन सजदों में है जो वो तन्हाई के अंधेरों में अपने रब के लिए करता है।
मंसूर का महल तो महज एक धोखा था, मगर यूसुफ का सब्र वो हकीकत थी जिसने मौत के गहरे गड्ढे में भी बरकत का दरवाजा खोल दिया। ये कहानी गवाही है कि जो रब के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, उसे कायनात का मालिक कभी दुनिया में जलील और तन्हा नहीं होने देता है। शाम की सुर्खलाली जब बुखारा के पहाड़ों और नीले मीनारों पर अपनी मखमली चादर फैला रही थी, तो यूसुफ और उसके वालिद उस नए कुएं के पास बैठे थे, जहां से अब मीठा और शफ्फाफ पानी बह रहा था। बहते हुए पानी की कलकल में एक अजीब सी रूहानी दुआ और कायनात का शुक्रगुजार होने का संगीत था। इब्राहिम ने अपने जवान बेटे का हाथ थामा और मुस्कुराकर डूबते हुए सूरज की आखिरी सुनहरी किरणों को देखा। बेटा, अल्लाह अपने चहीते बंदों को सख्त आजमाइश में इसलिए डालता है ताकि उनका ईमान कुंदन बन जाए। कारून का सोना तो महज एक धोखा था, असली खजाना तो वो नूर है जो सिर्फ पाक और सच्चे दिलों में जलता है। आज हमें अपनी रूह के अंदर झांक कर देखना होगा कि हम किस सोने की तलाश में अपनी ये कीमती उम्र गुजार रहे हैं। क्या हम हाथों में पकड़े सोने के सिक्कों को अपनी कामयाबी समझते हैं, या दिल के अंदर मौजूद उस अजीम सब्र को? हमेशा याद रखिए, हलाल रिज़्क की एक छोटी सी बरकत पूरे जहान की बेईमान दौलत पर हमेशा भारी पड़ती है। ए रब्बे मुस्तफ़ा, हमें उन लोगों में शामिल कर जो हर हाल में तेरा शुक्र और हया का दामन थामे रखते हैं। हमारे रिज़्क को पाक बना, हमारे ईमान को सलामत रख और हमें दुनिया के इस फरेबी लालच से हमेशा के लिए बचा। हमें उस इंसाफ पर यकीन अता कर जो हमारी नज़रों से ओझल है, मगर जिसकी पकड़ से कोई जालिम नहीं बच सकता। अगर आपको यूसुफ के सब्र और कारून के शापित खजाने की ये दास्तान पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अपने दिल के हाल और इस कहानी से मिले सबक को कमेंट्स में लिखें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख सकें। अल्लाह हमें सीधी राह दिखाए और हमारे दिलों को अपनी याद के नूर से हमेशा के लिए आबाद और रोशन रखे। आमीन।